स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड एक कैटाबोलिक ग्लैंड है दैट इज सिचुएटेड इन नेक। सो थायराइड ग्लैंड की अगर हम लोकेशन की बात करें देन इट इज लोकेटेड इन एंटीरियर पोर्शन ऑफ नेक, anterior part of neck, in front of trachea. In front of trachea. You can see in an image, this is thyroid gland and this portion is, these are the tracheal rings you can see here. So thyroid gland is located in front or anterior part of neck, in front of trachea it is located. You can see here it is highly vascular gland and it is located at C5 to T1 vertebral level. अगर एग्जाम में वर्टिब्रल लेवल पूछा जाए, which vertebral level, then your answer is C5 to T1. मीन्स वर्टिब्रा के साथ थायराइड ग्लैंड का क्या रिलेशन है? देन योर आंसर इज थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड एट सर्वाइकल फिफ्थ वर्टिब्रा टू thoracic फर्स्ट वर्टिब्रल लेवल एंड इट इज लोकेटेड इन नेक, एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक में लोकेटेड होता है एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया से आगे की तरफ, पीछे ट्रैकिया होगा, ट्रैकिया के पीछे इसोफेगस होगा और ट्रैकिया के आगे की तरफ बटरफ्लाई शेप में जो ग्लैंड होती है दैट इज नोन एज थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड इज हाईली वैस्कुलर ग्लैंड, बेसिकली हाईली ब्लड सप्लाई होता है. सो इट्स कलर इज रेड इन कलर एंड वेट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज 25 gram and shape of thyroid gland is butterfly shape. So these are physical characteristics of thyroid gland. Thyroid gland की location जो है that is very important. It is located in anterior portion of neck. At which vertebral level it is located? It is located at C5 to T1 vertebral level. Cervical fifth vertebra से T1 vertebral level तक इसका relation होता है. You can see in an image, it is butterfly in shape. Butterfly shape में gland होता है and it has two parts or two lobes. These lobes are connected with a isthmus. The connection between these lobes are known as isthmus. So thyroid gland, butterfly shape, it has two lobes. Right side lobe is known as right lobe of thyroid gland. Left side lobe is known as left lobe of thyroid gland. Thyroid gland basically made up of two type of cells. दो तरह की सेल्स थायराइड ग्लैंड में होती हैं जो थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन करती हैं. There are two type of cells. Some cells are in follicular shape, so these are known as follicular cells. Follicular cells, and second are parafollicular cells. Parafollicular cells. So thyroid gland is made up of two type of cells. One is follicular cell, second is parafollicular cells. Follicular cells जो होती हैं, they produce thyroid hormones. Follicular cells produce thyroid hormone. Thyroid hormones means T3 and T4.
thyroid hormones, that is T3 and T4. And parafollicular cells, these cells produce calcitonin hormone. Calcitonin, and it is also known as thyrocalcitonin hormone. Parafollicular cells are also known as C cells of thyroid gland. C means calcitonin producing cells. So thyroid gland has two type of cells, or you can say thyroid gland is made up of two type of cells. One is follicular cell, second is parafollicular cells. Follicular cells produce thyroid hormones, which are T3 and T4 hormones, and parafollicular cells or C cells produce calcitonin hormone. So this is about normally फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है, थायराइड ग्लैंड की शेप क्या है, थायराइड ग्लैंड का वेट कितना होता है, थायराइड ग्लैंड में कितने लोब्स होते हैं. दो तरह के लोब्स थायराइड ग्लैंड में पाए जाते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. दीज लोब्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद ए स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज इस्थमस. एंड थायराइड ग्लैंड हाईली वैस्कुलर ग्लैंड होता है, बिकॉज थायराइड ग्लैंड के अंदर हाई ब्लड सप्लाई होता है. आर्टरियल थायराइड आर्टरीज ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है थायराइड ग्लैंड को. थायराइड ग्लैंड के अंदर दो तरह की सेल्स हमने डिस्कस की, फोलिक्यूलर सेल्स एंड पैराफोलिक्यूलर सेल्स. फोलिक्यूलर सेल्स जिस हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, दैट इज नोन एज थायराइड हार्मोन्स और T3 एंड T4 हार्मोन्स. पैराफोलिक्यूलर सेल्स जिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, दीज आर calcitonin hormone, or you can say it is thyrocalcitonin hormone. So what are the functions of T3 and T4? T3 and T4, both hormones are catabolic hormones. Catabolic means these hormones provide energy by catabolism process, or their functions are catabolic functions. T3 hormone is also known as triiodothyronine, and T4 hormone is known as tetraiodothyronine, or it is also known as thyroxine hormone. थायरोक्सिन हार्मोन और टेट्राआयोडोथायरोनाइन हार्मोन, इन दोनों में अगर हम देखें, वन थिंग इज कॉमन, दैट इज आयोडो. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, which mineral is essential for the production of T3 and T4 hormone? Your answer is iodine. Iodine is must for production of T3 and T4 hormone. That is very important question. Which mineral is essential for production of T3 and T4 hormones? Second important question, T3 and T4 hormones are produced by which type of cells from thyroid gland? So your answer is follicular cells of thyroid gland produce T3 and T4 hormones. T3 and T4 hormones basically catabolic hormones होते हैं, जो बॉडी के अंदर stored न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और अपने फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स? बेसिकली वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर विद यू हियर कि T3 एंड T4 हार्मोन्स में से अगर आपको पूछा जाए कि T3 हार्मोन और T4 हार्मोन्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से हार्मोन का होता है, जो टोटल थायराइड हार्मोन्स बनते हैं, टोटल थायराइड हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, उन टोटल थायराइड हार्मोन्स में 90% जो हार्मोन होता है दैट इज T4 हार्मोन, एंड ओनली 10% हार्मोन इज T3 हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड. सो टोटल जितना भी थायराइड हार्मोन बनेगा, उसमें से 90% जो हार्मोन बनता है दैट इज T4 हार्मोन और thyroxine hormone, and T3 hormone is 10% only. But अगर फंक्शनल देखा जाए,
फंक्शनल के बेसिस पे कौन सा हार्मोन ज्यादा फंक्शन करता है, देन T3 hormone has more catabolic effect or more metabolic effect. Catabolism is a part of metabolism. So T3 hormone is highly metabolically effective, but T4 hormone is less metabolic effect. T4 hormone का metabolic effect जो है वो कम होता है. So you can say कि जो थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन होते हैं उन फंक्शंस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव फंक्शंस कौन से हार्मोन का होता है, T3 हार्मोन का होता है. बिकॉज इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट या फंक्शंस, मेटाबॉलिक इफेक्ट के जो फंक्शंस हैं वो T3 हार्मोन्स के ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू T4 हार्मोन. बट T3 एंड T4 हार्मोन्स में से प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, देन T4 हार्मोन इज प्रोड्यूस more than T3 hormone, but functionally T3 hormone has more function than T4 hormones. That is important question. So what are the functions of T3 and T4 hormone? दोनों ही hormones के functions similar होते हैं because body के अंदर इनका प्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड करके, थायराइड ग्लैंड इनका प्रोडक्शन करती है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करके इन हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम के अंदर पॉर करेगी और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं. बेसिकली थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन जो होगा वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था. स्टिमुलेशन इज डन बाय TSH हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. TSH हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू थायराइड ग्लैंड तक पहुंचेगा और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा. थायराइड ग्लैंड जब स्टिमुलेट होगी तभी थायराइड ग्लैंड ब्लड के अंदर T3 एंड T4 हार्मोन का प्रोडक्शन करेगी. ब्लड के अंदर T3 एंड T4 हार्मोन्स जो हैं वो हार्मोन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बॉन्ड बनाकर सर्कुलेट करेंगे. मेनली जो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से, दैट इज T4 हार्मोन. सो T4 हार्मोन मेनली प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, उनके साथ बॉन्ड बना के सर्कुलेट करेगा. पर कुछ हार्मोन, T4 हार्मोन जो है कुछ अमाउंट में फ्रीली ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है, दैट इज नोन एज फ्री T4 हार्मोन. दैट इज नोन एज फ्री T4 हार्मोन. सो हमें यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना है दैट इज कि फ्री T4 हार्मोन क्या होता है. फ्री T4 हार्मोन इज द हार्मोन that circulate into blood without make bonding with plasma protein. जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाए बिना ब्लड के अंदर जो सर्कुलेट हो रहा है, जो फ्रीली सर्कुलेट हो रहा है, दैट हार्मोन इज नोन एज फ्री T4 हार्मोन. अदरवाइज जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ब्लड के अंदर बॉन्ड बना के रखते हैं. बट कुछ हार्मोन, T4 हार्मोन का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए T4 हार्मोन कुछ अमाउंट में फ्रीली सर्कुलेट करता है ब्लड के अंदर, दैट इज नोन एज फ्री T4 हार्मोन. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन? T3 एंड T4 हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी की BMR को इंक्रीज करते हैं. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन दैट इज इंक्रीज BMR. BMR मीन्स बॉडी मेटाबॉलिक रेट और यू कैन से बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी की इंक्रीज करेंगे. विच टाइप ऑफ BMR? कैटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म हैज टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. सो T3 एंड T4 हार्मोन्स क्या करते हैं, बॉडी की कैटाबॉलिज्म प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं. दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स, दे इंक्रीज हीट प्रोडक्शन. अगर BMR बढ़ेगा तो हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. सो दे आल्सो इंक्रीज हीट प्रोडक्शन. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स, दे इंक्रीज कैटेकोलेमाइंस एक्टिविटीज. कैटेकोलेमाइंस मीन्स एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, और यू कैन से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन. एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के जो फंक्शंस होते हैं
उन फंक्शंस को स्पीड अप करने का या इंक्रीज करने का काम भी T3 and T4 hormones करते हैं. So these are important functions of T3 and T4 hormones. T3 and T4 hormones increase BMR, बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, हीट प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं और कैटाकोलामाइन एक्टिविटी को भी ये इंक्रीज करते हैं. These are the main functions of T3 and T4 hormones. अगर किसी पर्सन में T3 and T4 hormones का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए या मैं कहूं कि देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ T3 and T4 हार्मोन इन ए पर्सन दैट लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों के अंदर होता है, अगर कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज क्रेटिनिज्म. कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म अगर कंजेनाइटल होगा, अगर बचपन से ही बच्चे के अंदर T3 एंड T4 की डेफिशिएंसी है, देन दैट इज नोन एज क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म मींस कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म. अगर अडल्ट एज के अंदर T3 एंड T4 हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज माइक्स इडिमा. दैट इज नोन एज माइक्स इडिमा. So, cretinism and Meigs edema both are types of hypothyroidism as per age. If there is congenital deficiency of T3 and T4 hormones, then it is known as cretinism. If there is adult deficiency और adult के अंदर अगर T3 and T4 hormone की deficiency होती है, then this condition is known as Meigs edema. We will discuss in disorders of thyroid gland about these both conditions. अगर किसी पर्सन के अंदर T3 and T4 हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं या एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, then this condition is known as hyperthyroidism. This condition is known as hyperthyroidism. Hyperthyroidism means there is increased production of T3 and T4 hormones. This condition is known as hyperthyroidism only. So, deficiency of T3 and T4 hormones will lead to hypothyroidism. Excessive production of T3 and T4 hormone, or you can say thyroid hormones, that lead to hyperthyroidism conditions. So, what will happen in hypothyroidism and hyperthyroidism? I will tell you in brief. अगर किसी पर्सन के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हुआ है, इट मींस T3 एंड T4 के जो फंक्शंस हैं दैट विल डिक्रीज. T3 एंड T4 का डेफिशिएंसी हुआ तो जो T3 एंड T4 हार्मोन्स के जो फंक्शंस हैं वो नहीं होगा. सो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर उन पर्संस के अंदर BMR डिक्रीज हो जाती है. और कौन सी BMR डिक्रीज होती है? दैट इज डिक्रीज कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म का प्रोसेस डिक्रीज होगा, बॉडी के अंदर स्टोरेज ज्यादा होगा न्यूट्रिएंट्स का, ब्रेक डाउन कम होगा. इसी वजह से उन पर्संस के अंदर वेट इंक्रीज रहेगा. मींस जिन पर्संस को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उन पर्सन के अंदर वेट गेन इज कॉमन सिम्टम. वेट गेन होगा, ओनली एनाबोलिज्म होगा, कैटाबोलिज्म विल डिक्रीज. सो पर्सन जो कुछ भी न्यूट्रिएंट लेगा दैट न्यूट्रिएंट विल बी स्टोर्ड इनटू बॉडी इन एडिपोज टिश्यूज में फैट का स्टोरेज होगा, प्रोटीन मसल्स में स्टोर होगा. सो देयर इज वेट गेन इज कॉमन सिम्टम इन हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट्स बिकॉज देयर इज डिक्रीज BMR. एंड BMR अगर डिक्रीज होगा देन हीट का प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीज. सो दीज पर्संस हैज कोल्ड सेंसिटिविटी. cold sensitivity, or you can say there is hypothermia. उन पर्सन्स को सर्दी ज्यादा लगेगी, उनका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज रहेगा अगर पर्सन में T3 एंड T4 हार्मोन का डेफिशिएंसी हुआ है तो. सो these symptoms are directly related with the functions of T3 and T4 hormone. If there is deficiency of T3 and T4 hormone, then there is weight gain, there is cold sensitivity or hypothermia.
and there is also decreased catecholamine functions. मीन्स एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के फंक्शंस भी डिक्रीज हो जाएंगे इन पेशेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया, बिकॉज एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनॉमिक फंक्शंस ऑफ बॉडी, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन पेशेंट्स को रहेगा। ये वाले सिम्टम्स जो कैटेकोलेमाइन फंक्शंस के सिम्टम्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन, दी सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथायरॉयडिज्म। लाइक अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा किसी पर्सन को, तो उस पर्सन के अंदर अपोजिट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उन पर्सन के अंदर T3 एंड T4 का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। T3 एंड T4 हार्मोन का प्रोडक्शन अगर ज्यादा हुआ तो उन पर्सन के अंदर हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा। उन पर्सन की BMR इंक्रीज हो जाएगी इन कंडीशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मींस इंक्रीज T3 एंड T4। T3 एंड T4 हार्मोन्स का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा, देन दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। और जब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, उस कंडीशन के अंदर BMR इंक्रीज होगी। कौन सी BMR इंक्रीज होगी? कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। मींस पर्सन के अंदर जो स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स हैं एडिपोज टिश्यूज के अंदर, मसल्स के अंदर, वो डेफिसिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन देयर इज वेट लॉस। एंड पर्सन में BMR अगर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मींस पर्सन में हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सो देयर इज हाइपरथर्मिया, और यू कैन से पर्सन को गर्मी ज्यादा लगेगी। दे बिकम सेंसिटिव टू हीट, they are more sensitive to heat, so there is hyperthermia, and there is also increase catecholamine functions. Catecholamine functions increase हो जाएंगे, means tachycardia पर्सन को देखने को मिलेगा। tachycardia, hypertension, hyperglycemia, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के फंक्शंस होते हैं, दे विल इंक्रीज, और यू कैन से सिंपैथेटिक सिम्टम्स विल इंक्रीज। सो इन डिटेल वी विल डिस्कस इन द डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, बट मेन थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स अगर डिस्टरबेंस होगा तो BMR ऑल्टर होगी, और BMR ऑल्टर होगा तो हीट से रेगुलेशन जो है दैट बिकम ऑल्टर्ड। सो डिटेल में इन डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड में हम डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर में। सो दिस इज अबाउट थायराइड हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड और follicular cells of thyroid gland. T3 and T4 hormones are produced by follicular cells. So important questions in thyroid gland functions or thyroid gland anatomy and physiology. What is the weight of thyroid gland? Location of thyroid gland. Thyroid gland is located in anterior part of neck, mainly in front of trachea. Which vertebral level it is located? It is located at cervical 5th vertebra to thoracic 1st vertebra. So C5 to T1 vertebral level पर इसका लोकेशन होता है। And thyroid gland produce two type of hormones, follicular hormones and parafollicular hormones. जो follicular cells होती हैं, वो जिस हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, उनको हम थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। follicular cells produce T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन। T3 एंड T4 हार्मोन्स दोनों के जो फंक्शंस हैं दैट आर सिमिलर, दोनों के सेम फंक्शन होते हैं। T3 हार्मोन्स का प्रोडक्शन एज कंपेयर टू T4 हार्मोन कम होता है। 10% टोटल थायराइड हार्मोन्स का T3 हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और टोटल थायराइड हार्मोन का 90% जो है दैट इज T4 हार्मोन। बॉडी को जब जरूरत होती है तो T4 से पेरिफरली ब्लड के अंदर T3 हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन होगा। बाकी हम इस ग्लैंड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज अबाउट द थायराइड हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम follicular cells. Thank you very much.